Good morning, student. How are you all? Hope you all are doing very great. So, today I am going to take up a very interesting topic from the book Beehive, and it's a poem that is A Legend of the Northland, written by Phoebe Carey. And Phoebe Carey is not a poet; it's a poetess. All right. So, in this chapter, the title. First, let's see the title. A legend. What is the meaning of legend here? So, legend, it's a fable, it's a story. And of the Northland means the story of the Northland or the tale of the Northland. Northland is a place, इट्स अ कंट्री. तो ये जो स्टोरीज है, ये जो पोम है, ये किससे बिलोंग करती है? नॉर्थलैंड से बिलोंग करती है. ऑल राइट. सो as you all know, when we were child, or when we were small, so our grandparents, that is our grandmother or grandfather, used to tell us some stories. All right. And even our parents also tell us some stories, and that stories had some moral messages in it. All right. So you get something to learn. Okay. And those stories give to you life lesson, good message. ऑल राइट. सो यही एक लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की स्टोरीज बता रहे हैं. बेसिकली जो लीजेंड वर्ड यूज हुआ है और जो नॉर्थलैंड की स्टोरीज के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बेसिकली ये एक पासिंग स्टोरीज है. मीन्स द स्टोरीज पासिंग ऑफ द वन जनरेशन टू द अदर. ऑल राइट. सो द टाइटल इज वेरी अप्रोप्रिएट, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. ऑल राइट. सो in this poem you will see the two characters, that is one is Saint Peter and the other is a woman. All right. So Saint Peter and woman का क्या character है, what they did in this particular poem, let us we will discuss in this poem. All right. So basically this is a very large poem by Phoebe Carey, and it's a ballet poem. So what is the meaning of ballet? Basically ballet, it's a song narrating a story in a short stanza. ballet एक poem होती है, एक song होता है, एक song के थ्रू stanza में डिवाइड होते हैं और एक पोइट्री रेडी की जाती है, उसी को हम बैले बोलते हैं. सो बैले का स्पेलिंग क्या होता है? BALLAD. इट्स अ करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बैले. है, इसे बैलेट प्रेजेंस नहीं करेंगे, इसे आप क्या बोलेंगे? बैले. एंड बैले इज अ such song narrating a story in short stanzas. All right. So in this particular poetry we have seen around 16 stanzas. As I already told you that it's a very large poem by Phoebe Carey. So in this poetry we have around 16 stanza. So first in this particular video we discuss only 8 stanzas, and after that in our next part of this particular poem we will discuss other next part, means other next 8 parts. All right. So let's start. So A Legend of the Northland, I already told you it's a very appropriate title. So this poem is a legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. So अब क्या होता है, यहाँ ये एक पोएम है जो एक लीजेंड ओल्ड स्टोरी है. मीन्स जो हमारे जैसे आपको स्टोरीज आपके पेरेंट्स सुनाते थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स सुनाते थे, वो स्टोरी पास होती जाती थी वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. ऑल राइट. सो यहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट द टू कैरेक्टर्स. one is Saint Peter and the other one is a greedy woman. Okay, let's start. So here the first stanza. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So अवे अवे मतलब दूर दूर तक नॉर्थलैंड में क्या होता था? वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, मीन्स जो आवर्स होते थे, दिन होता था, वो बहुत छोटे होते थे. एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर. यूजुअली ऐसा भी हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं विंटर्स के टाइम पे कि विंटर्स में जो दिन होते हैं
वो स्मॉलर होते हैं कंपैरेटिवली द नाइट टाइम। ओके, जो नाइट जो होती हैं वो लॉन्गर होती हैं और जो डेज होते हैं वो शॉर्टर होते हैं। ऑलराइट, सो इधर भी नॉर्थलैंड में क्या था, विंटर्स रहती थी, बहुत ज़्यादा कोल्ड था वहाँ पे, ठंड थी वहाँ पे। दैट इज़ द मेन रीज़न कि जो डेज होते थे वो शॉर्टर होते थे और जो नाइट्स होती थी वो लॉन्गर होती थी। ऑलराइट, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। सो here they refer to the people of the northland। ऑलराइट, जो पीपल थे नॉर्थलैंड की वो है, they cannot sleep them through। so वो पूरी that means जो विंटर नाइट होती थी वो सो नहीं पाते थे। अगर हमसे कोई कहे कि नाइट में आपको इतना लंबी नाइट मिल रही है तो हम तो बहुत सोएंगे, राइट। जैसे आप लोग अभी कर ही रहे हो, वीडियोस नहीं देखते हो, ऑल द टाइम यू ऑल आर स्लीपिंग। सो हेयर ऐसा ही है, बट यहाँ जो नॉर्थलैंड के पीपल की बात हो रही है वो सो नहीं पाते थे। So basically in this stanza, the poetess, not poet, okay. So the poetess just telling us that there is a place that is Northland is different to the other northern countries. Like there is so cold because the sun rays means the sun rays only fall for the limited duration. Alright, so therefore the duration of the day is very small, but the nights are very longer. Because of that, the people staying there are not able to sleep completely throughout the night. Alright, so next stanza. See, this story is very nice and very beautiful story, and there are total 16 stanza जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। So इसमें ऐसा कोई बहुत difficult stories नहीं है जो समझ नहीं पाओ। It's a very sweet and easy story which can be understandable by anybody. Alright, but कुछ ही वर्ड्स हैं जिनके आपको मीनिंग्स देखने पड़ेंगे। उनमें से कुछ सेकंड स्टेंजा है जो थोड़ा टफ है, तो प्लीज बी केयरफुल। Where they harness the swift reindeer to the sledge. So here the word harness means to tie the reindeers with a rope to a sledge so that it can be used for transportation। harness एक मतलब एक काइंड ऑफ रोप होती है जो जिससे रेंडियर्स को बांधा जाता है, किससे, स्लेज से। अब हेयर द स्विफ्ट मीन्स समथिंग विच रन्स वेरी फास्ट, जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और रेंडियर्स आपने देखे होंगे, ये एक पोलर रीजन्स के एनिमल होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे जैसे हमारी बुल कार्ट होती है, बुलेट कार्ट होती है जिसमें बुल यूज़ की जाती है, वैसे ही जो पोलर रीजन्स होते हैं, जो आइसी प्लेस होते हैं, वहाँ पे रेंडियर्स एनिमल्स का यूज़ किया जाता है टू द स्लेज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लेज हियर? Okay, see, sledge a vehicle or runners for conveying loads or passenger over snow, often pulled by the draught animals। So यहाँ पे बोला गया है कि ये जो स्लेज है, स्लेज इट्स सिमिलर लाइक अ कार्ट जो हमारी होती है, उससे आप इसको समझ सकते हैं। सो जो हार्नेस है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दे हेयर रेफर टू द पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड। So the people of the Northland tie the harness with the reindeers to the sledge। अब स्लेज पे क्या करते हैं, स्लेज से रेंडियर्स को हार्नेस के थ्रू बांध देते हैं वो, जो एंड इट बेसिकली इट इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। किसके यूज में आती है, ट्रांसपोर्टेशन के यूज में आती है। ऑलराइट, तो व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ पड़ती है, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक्स bear cubs। अब bear cubs क्या होते हैं, वो भी बहुत फरे से होते हैं। सो हेयर चिल्ड्रन को कंपेयर किया गया है, यहाँ पे सिमिली यूज की गई है, चिल्ड्रन को कंपेयर किया गया है bear cubs से। bear cubs मतलब जो बैस के बच्चे होते हैं, cubs उनको कहते हैं, वो बहुत फरे होते हैं। वैसे ही चिल्ड्रन जो है नॉर्थलैंड के, वो क्या है, वो जैसे फर वाले क्लोथ्स पहन लेते हैं बिकॉज ऑफ कोल्ड। सो जब वो कवर हो जाते हैं तो दे एग्जैक्टली लुक लाइक द bear
cubs in their funny furry clothes. और वो बहुत cute और funny दिखते हैं in their furry clothes. All right. So the third stanza, they tell them a curious stories. I don't believe tis true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. So here they tell them a curious story. They here refer to the grandparents or our ancestors or our parents कि वो हमें क्या है, they tell them a curious stories, वो हमें बहुत curious means बहुत strange stories हमें सुनाते थे. I don't. So here I refer to Phoebe Carey, means a poetess. So here the poetess says कि I don't believe tis. So here the word tis means it is true. So what is true here means she doesn't believe she doesn't believe कि जो वो स्टोरीज होती थी वो ट्रू होती थी जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हमें सुनाते थे. Alright, but and yet you may learn a lesson. But still she believed कि through those stories we learn something. There is a message, okay, and you get something to learn. And वो स्टोरीज हमें और क्या चीज़ें जैसे लाइफ लेसन्स हमें बताती थी. इफ आई मीन्स इफ Phoebe Carey टेल द टेल मीन्स टेल द स्टोरी टू यू. ओके, अगर वो एक स्टोरी आपको बताएं, मीन्स यहाँ पे कह रही हैं कि वो स्टोरीज ट्रू तो नहीं होती थी, शी थॉट, बट स्टिल देयर इज समथिंग, अ मैसेज फॉर यू, अ मैसेज फॉर द चिल्ड्रन, and to learn something from that and get some message from that stories. तो वो कहती थी maybe they are not true but still we get some message from those stories. So अभी कह रही है कि अगर मैं तुम्हें कोई स्टोरी बताऊं तो fourth stanza, once when the good Saint Peter. So now the two characters मतलब अब ये जो Phoebe Carey है, वो उन्होंने कहा था ना स्टोरी बताएंगे, तो अभी हमें वो स्टोरी टेल करनी है हमें कि कैसे स्टोरी बताएंगे. तो I was talking about the two characters, that is one is Saint Peter. So here the saint means a disciple or a follower of Jesus Christ, right? एक बहुत साधु संत वाला इंसान. तो सेंट पीटर थे, a good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. So here the word preaching means to give a religious talk. हम जब रिलीजियस टॉक करते हैं या किसी को प्रीच मतलब भाषण देते हैं, रिलीजियस स्पीच कह सकते हो आप उसको, उसे प्रीच कहा जाता है. तो सेंट पीटर क्या करते थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही वॉज वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर ऑल टाइम. और क्या करते थे, ही यूज्ड टू प्रीच एवरी पीपल, ओके, एंड एवरी टाइम. He came to the door of a cottage. अब वो एक कॉटेज में, एक घर पर आते हैं, एक डोर पर आते हैं. In traveling round वो ऑल टाइम ट्रेवल करते थे, एक जगह पे नहीं रहते थे. वो सेम थे, दैट्स वाई वो एक जगह पे नहीं रहते थे. He was all time wandering one place to another, migrate करते थे. They are little women. So now here is a second character, a woman was making cakes and baking them on the earth. So अब क्या करती थी, वहाँ पे एक women है, वो all time क्या बनाती थी, केक्स बनाती थी, ठीक है. और आप कह सकते हो उसकी केक की शॉप थी. A little woman means a short-heighted woman and baking them on the earth. So here the earth means, I just want to drag it. Okay. So here the earth means fireplace where you do cooking. एक ऐसा कुछ ऐसे से शेप में, अगर आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कुछ ऐसा सा एक आर्ट सा शेप होता है और इसके अंदर फायर होती है, राइट. सो इसे ही अर्थ कहते हैं, जहाँ पे ओल्ड टाइम पे बेकिंग की जाती थी. तो अर्थ को आप कह सकते हो और ट्रेडिशनल बेकिंग मतलब बेकिंग ओवन, और ओवन कह सकते हो ट्रेडिशनल ओवन. तो वहाँ पे वो कुक करती थी, मीन्स अपने केक को बेक करती थी. एंड बीइंग फेंट विद
fasting. So यहाँ पे first था baking them on the earth. अब यहाँ पे क्या था, and being faint with fasting for the days was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब क्या था, जो सेंट थे, जो पीटर सेंट पीटर थे, he was feeling faint. So here the faint means feeling dizzy और means to lose consciousness, मतलब बेहोश से होने वाले थे because of फास्टिंग, क्योंकि वो फास्टिंग पर रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन. अब जो डे था वो पूरा ऑलमोस्ट डन होने वाला था. सो ही आस्क्ड हर, मीन्स आस्क्ड अ वुमन फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक्स, क्योंकि उसकी स्टोर थी केक्स की, तो गिव हिम अ सिंगल वन. अब उन्होंने क्या कहा, उनसे पूरा तो उन्होंने मांगा नहीं, कहा एक छोटा सा केक मुझे दे दो. तो क्या जाता है, अगर सिंगल केक हम किसी को दे देते हैं तो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है. सो हम यहाँ पे उन्होंने भी ऐसे ही किया. पीटर ने उनसे क्या मांगा, अ सिंगल वन, मीन्स कुछ पीस दे दो केक का. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक. अब यहाँ पे विमेन के कैरेक्टर की बात हो रही है, विमेन कैसी है उनके बारे में बात हो रहा है. शी वॉज वेरी माइजर, बहुत माइजर थी. मतलब अगर वो एक पूरा केक बना रही हैं तो वो केक अगर खुद के लिए बना रही है तो उनको तब भी कम लगेगा. अगर वो किसी को गिफ्ट करना हो, गिव अवे करना हो, तो शी थॉट कि नहीं वो ज़्यादा है, अगर छोटी से छोटी चीज़ हो तो उनको ज़्यादा लगती है. तो क्या होता है कि हम किसी की हेल्प करना, मदद करना, इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग. आप हमेशा किसी की मदद करोगे या कुछ भी आपके पास है, अगर थोड़ा सा किसी की हेल्प कर दोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है. सो प्लीज़ यू शुड बी काइंड एंड हेल्पफुल द पीपल who are in need. Always you should be kind and helpful. All right. So यहाँ पे जो वो लेडी थी वो बहुत माइजर थी. The woman was too miser. So वो जो उसने क्या किया, उसके पास केक्स की स्टोर थी, वो कोई सा भी केक निकाल कर उनको दे सकती थी पीटर सेन को. But she didn't do that. What she did at that time, उन्होंने she made a very little cake. उन्होंने छोटा सा केक बनाया. But as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. जैसे ही वो बेक हो रहा था, she looked at him and she thought कि ये तो बहुत लार्ज है किसी को देने के लिए. मतलब उनको वो छोटा, उन्होंने एक छोटा केक बनाया उसके लिए, बस स्टिल उन्हें बहुत लार्ज लगा किसी और को देने के लिए, तो जब वो बेक हो रहा था. So therefore she needed. So here the word needed means to make dough from flour. मीन जब हम आटा गूंदते हैं ना, उस आटा गूंदने को नीडेड कहते हैं. तो उन्होंने एक अनदर डो नीड किया एंड स्टिल अ स्मॉलर वन. और अगेन उन्होंने वो नीड किया और छोटा, मतलब पहले तो उन्होंने स्मॉल बनाया था, वो उससे भी छोटा डो रेडी किया. बट इट लुक व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन. सो बट जब उन्होंने उसको टर्न किया तो वो उतना ही बड़ा था जितना वो फर्स्ट वन था. आप देख सकते हो कितनी माइजर थी. अभी उस छोटे केक में से भी उसको और छोटा उसने डो रेडी कर लिया. स्टिल वो अभी सोच रही है कि वो अभी भी क्या है, बड़ा है, तो उसको देने का ही मन नहीं हो रहा कि वो अभी भी बड़ा है किए जा रही है एक सेकेंड टाइम ट्राई करने के बाद भी. ऑलराइट. सो विद दिस वी कम टू एन एंड. So we will continue this poem in our next video. Till then, take care yourself and thank you for watching.